دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دینداروں، قرآن شریف جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور ایک معجزہ ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا the Holy Quran is a miracle in Islam۔ قرآن دین اسلام کا ایک معجزہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں بہت ساری گائیڈنس، بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد، کائنات میں انسان کا مقام، اپنے مقاصد کے حصول کے راستے اور ان راستوں کو کس طرح اپنایا جائے، کس طرح حاصل کیا جائے اور کس طرح انہیں پریکٹس کی جائے، ان تمام امور کے بارے میں فنڈامنٹل تعلیمات، بنیادی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام میں موجود ہے۔ ہمارا جو پورا عقیدہ کا ڈھانچہ ہے، جو ہمارے ایمان کا پورا اسٹرکچر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پہ بنیاد رکھتا ہے، اور ہمارے جو اعمال کی زندگی ہے، جو ہماری پریکٹس کی زندگی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات پر ہی مبنی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کے فرمان میں سے ہم ایک اہم فرمان کے بارے میں بات کریں گے، جسے جیسے کہ ابھی بھی ہم نے اس کا استعمال کیا، اور اس کو استعمال کرنے، اس کو پریکٹس کرنے کا جو رینج ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ ہے صلوات۔ ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ جملہ ہے جو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام کا نام لیتے ہیں تو اس وقت بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنی عبادات میں اکثر اس کو پڑھتے ہیں، جب زمانے کے امام کا ہم ظاہری دیدار کرتے ہیں تب بھی ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں، اور ہم مرحوموں کو فیض پہنچانے کے لیے، مرحوموں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی ہم امام کی ہدایات کے مطابق اسی جملے کو استعمال کرتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں جو عبادت ہے، جو مسلمان بھائیوں کی نماز ہے، اس کے بارے میں یہی مانا جاتا ہے کہ نماز میں محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا لازمی ہے۔ جب تک محمد و آل محمد پر نماز میں صلوات نہ ہو تب تک نماز کو مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ لفظ صلوات قرآن میں جو لفظ جس کو لوگ نماز کے حوالے سے بھی استعمال کرتے ہیں، جس کو صلاۃ کہتے ہیں، کیونکہ نماز کا لفظ تو قرآن میں استعمال نہیں ہوا، وہ فارسی اور پہلوی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن میں لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے، اور اسی صلاۃ کی جو جمع ہے، پلورل ہے، وہ صلوات ہے، جس کے معنی ہے دعا، اس کے معنی ہے رحمت، اس کا مطلب نماز بھی لیا جاتا ہے۔ اور ایک آیت میں، ایک خاص کانٹیکسٹ میں، یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے، جس کو سنگوگ کہتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ کو بھی قرآن شریف میں صلوات کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں صلوات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جسے ہم اپنی زیارت میں، اپنی فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت ہے قرآن شریف کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 میں۔
اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، بالکل جیسا کہ اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، صلوات بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، صلو علیہ، تم بھی صلوات بھیجو اس پر، وسلموا تسلیما، اور اسے اس طرح تسلیم کرو، قبول کرو جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے، یا اسے اس طرح سلام کرو جیسا کہ سلام کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت ہے قرآن شریف میں جس کی بنیاد پر صلوات پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کو یوں ہی سرسری طور پر دیکھنے سے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، جن کو آج ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر۔ ایک اور مقام پر ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صاحب مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ تو جو خود رحمت للعالمین ہے، جو تمام جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس پر مزید رحمت مانگنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یا اس پہ مزید رحمت نازل کر کے کیا اضافہ ہوگا جو کہ خود رحمت للعالمین ہے۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، اور ہم سے کہا گیا بھئی تم بھی رحمت بھیجو۔ کیا خالق اور مخلوق ایک ہی کام کرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو خالق اور مخلوق سب مل کر ایک ہی کام کرتے ہو؟ جو خالق کا کام ہے وہ مخلوق نہیں کر سکتا۔ جو اللہ دے سکتا ہے، جو فرشتے دے سکتے، وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی امر کے ساتھ، اپنے کسی کام کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود صلوات بھیجتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتوں کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی رحمت لے کر جاتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا تم بھی رحمت بھیجو، ہم اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو محمد اور اس کے آل پہ رحمت بھیج۔ وہ تو اللہ کہہ رہا میں تو کر ہی رہا ہوں، میں تو محمد پہ رحمت بھیج رہا ہوں، فرشتے رحمت لے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اس پر رحمت بھیجو۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں اے اللہ محمد اور اس کی آل پہ رحمت بھیج۔ اللہ کہتے ہیں تم بھیجو، ہم کہتے ہیں تو بھیج۔ عجیب سی بات ہے، یہ کیسا جملہ ہے اور یہ کیسی دعا ہے جس میں ہم اللہ کو وہی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں جو وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم کرو۔ یہ چند سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر کہیں بھی آل محمد کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن شریف کی یہ آیت جس طرح اتری ہے اور جس طرح قرآن شریف میں ہے، اس میں النبی کا نام ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ آل کا بظاہر اس میں ذکر نہیں ہے، مگر جب ہم صلوات پڑھتے ہیں، کوئی بھی مسلمان صلوات پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتا ہے۔ کیوں؟ یہ آل کے لفظ کا اضافہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کہاں سے آیا؟ اور جب آل محمد کہا جائے تو آل محمد میں کون شمار ہوتے ہیں؟ آل محمد میں کون لوگ ہیں؟ اور جو صلوات پڑھنے کا یہ جملہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ کہاں سے آیا؟
اللہ نے تو सलवात पढ़ने का हुक्म दिया है। ये जो जुमला है ये कहां से आया, और सबसे आखिर में कि इसको पढ़ने का क्या सवाब, इसको पढ़ने का सवाब क्या है, वो सवाब हमें कैसे हासिल होता है। जैसे हम एक आपस में एक दूसरे पे रहमत भेज रहे हैं, अल्लाह हम पे भेज रहा है और हम अल्लाह से कह रहे हैं जी आप भेजिए, अल्लाह कह रहा है मैं भेज रहा हूं तुमको, इसके बीच में हम कहां हैं। और हम सलवात की इतनी अहमियत बयान करते हैं तो ये सवाब बिल आखिर हम तक, या जिनके सवाब के लिए हम पढ़ते हैं उनको ये सवाब किस तरीके से पहुंचता है। कुरान शरीफ में सलवात के जो बयानात आए हैं उसकी कई किस्में आई हैं और कई लेवल्स पे सलवात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहली आयत जो मैं पहले पढ़ गया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते और मोमिनीन रसूल अल्लाह पे सलवात पढ़ते हैं, एक ये कैटेगरी है। दूसरा ये है कि अल्लाह सब्र करने वाले मोमिनीन पर बराह रास्त सलवात भेजता है। वो आयत आपने बार बार सुनी है कि जिसमें आजमाइश का जिक्र है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, हम जरूर तुमको आजमाएंगे, खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, तुम्हारे जान में, तुम्हारे माल में, तुम्हारे फलों में, समरात के नुकसान में तुमको आजमाएंगे। वबश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वालों को मुबारकबाद दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पे कोई मुसीबत आई तो उन्होंने कहा हम अल्लाह के हैं और हम अल्लाह की तरफ वापस जा रहे हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की तरफ से सलवात है और रहमत है। उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। तो सब्र करने वाले पे अल्लाह सलवात नाजिल फरमाता है, ये कुरान की आयत है। अल्लाह मोमिनों पर सलवात भेजता है। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतु, अल्लाह और उसके फरिश्ते दोनों हम पर भी सलवात भेजते हैं। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजुकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम पर सलवात भेजते हैं ताकि तुमको अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले जाए। इस सलवात की बरकत से तुम्हें डार्कनेस से निकालकर लाइट की तरफ, तारीकी से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए। रसूल अल्लाह भी मोमिनों पे सलवात भेजते हैं, जैसा कुरान की एक आयत में आई कि वमिनल आराबी मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह व सलवाति रसूल। ये बदू जो हैं, अरब के बदू लोग, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, और जो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, इसके बारे में उनका अकीदा है कि ये इनको अल्लाह से करीब कर देता है और इनको रसूल अल्लाह की सलवात मिलती है, इनको रसूल अल्लाह की दुआएं मिलती है। और अल्लाह ने फरमाया बेशक ये उनके लिए अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, अल्लाह के कुर्बत का रास्ता है। और एक और आयत में फरमाया कि खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, ऐ रसूल आप इनके माल में से सदका ले लीजिए, तुतहिरहुम, इनके माल को पाक कर दीजिए, उनको पाक कर दीजिए, व तुज़क्कीहिम, और उनके माल में बरकत दे दीजिए, बिहा वसल्ली अलैहिम, और आप इनको सलवात दीजिए, आप इनको दुआएं दीजिए। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, बेशक आपकी दुआ में इनके लिए सुकून है। तो आप देखिए अल्लाह की सलवात भी है, अल्लाह की सलवात रसूल पर है, अल्लाह की सलवात मोमिनीन पर है, रसूल की सलवात मोमिनीन पर है। तो सलवात के ये दर्जात जो है जिनका तज़किरा कुरान शरीफ में बयान किया गया है। पहली आयत जिसका हमने जिक्र किया उसकी वजाहत हमारे अइम्मा ने भी बताई है कि ये जो आयत है
इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पर सलवात भेजते हैं। तो इसका खुलासा ये किया गया है कि जब अल्लाह के साथ सलवात की बात आती है तो अल्लाह रसूल पे रहमत नाजिल फरमाता है। जब फरिश्तों के हवाले से बात आती है तो फरिश्ते रसूल की पाकीज़गी बयान करते हैं, उनकी बुजुर्गी और उनकी बड़ाई बयान करते हैं। और जब मोमिनों के हवाले से आया गया है तो मोमिनों से कहा गया कि आप दुरूद पढ़े या सलवात पढ़े और ये दुआ मांगे कि अल्लाह की रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहे। रसूल खुदा को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत का मंबा बनाया है, रहमतुल लिल आलमीन फरमाया है, और सारे जहान की रहमत रसूलुल्लाह के जरिए से आती है। इसलिए रसूलुल्लाह पर मुतवातर अल्लाह की ये रहमत बरकरार रहे, इसके लिए ये दुआ मांगी जाती है। ये एक वजाहत भी इसकी की जाती है। सलवात का जो मतन है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व आले मुहम्मद, ये टेक्स्ट और ये मतन हम तक किस तरीके से पहुंचा। जब कुरान शरीफ की ये आयत उतरी, आपको पता है कुरान की बहुत सी आयत मुजमल सूरत में होती है, एक हुक्म दे दिया जाता है, उसकी तफासिल, उसकी डिटेल्स उसमें नहीं है। आज मैं किसी से कहूं कि भाई मुझे अपनी दुआ पढ़नी है कुरान शरीफ की रोशनी में, कोई शख्स कहे भाई कुरान शरीफ में जिस तरह दिया गया है मुझे उस तरीके से नमाज पढ़नी है, तो कोई भी साहब जो कुरान जानते हैं आपको बताएंगे भाई नमाज या सलात का हुक्म तो कुरान में है मगर उसके पढ़ने का तरीका कुरान में नहीं है, ये रसूल खुदा ने बताया है। ज़कात का हुक्म तो कुरान में है मगर किसमें से कितनी ज़कात देनी ये कुरान में नहीं है, ये रसूल खुदा ने बताई है। अहले बैत का जिक्र कुरान में है मगर अहले बैत का नाम नहीं है, ये हुजूर ने बताया कि अहले बैत कौन है। इस तरह बहुत से अहकाम है कि जिनकी वजाहत रसूल खुदा ने करके दी है। इसी तरीके से जब ये सलवात की आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पे सलवात भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी उन पर सलवात भेजो और उन्हें तस्लीम करो जैसा कि तस्लीम करने का हक है। तो लोगों ने सवाल पूछा कि या रसूलल्लाह हमें आप पे सलवात पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, तो आप हमें बताइए कि हम आप पे सलवात किस तरह पढ़े। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह तेरी रहमत रहे मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। देखिए यहाँ हुजूर ने बताया कि इस तरह सलात पढ़ो, और ये रिवायत ये सिर्फ शियों की रिवायत नहीं, आप उनको आम किसी भी वो आले मोहम्मद के बाद किसी और को भी ऐड करना चाहेंगे अपनी सलवात में मगर कोई आले मोहम्मद को निकालने की जरूरत नहीं कर सकता। आले मोहम्मद के बाद और भी लोगों को सलवात में शामिल करने की कोशिश करेंगे मगर कोई भी मुसलमान ये जुर्रत नहीं कर सकता कि मोहम्मद पे अटक जाए, आले मोहम्मद सलवात पे न कहे, क्योंकि ये हुजूर का बहुत वाज़ेह फरमान है कि अल्लाह तेरी रहमत रहे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू हमीद है, काबिल तारीफ है, तू मजीद है, तू बहुत बड़ा बुजुर्ग है। बाज लोगों ने जब हुजूर अकरम की खिदमत में सलवात को इस तरह पढ़ा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो आपने फरमाया ला तुसल्ली अलैहि सलातन बतरा, मुझ पर अधूरी सलवात न पढ़ो। फारसी में कहते दुम बुरीदा, दुम कटी हुई सलवात, अधूरी सलवात। मुझ पर ला तुसल्ली अलैहि सलवातन बतरा, अबतर कहते हैं जिसकी औलाद आगे न चले वही सिलसिला खत्म हो जाए, उसी लफ्ज से निकला है, अबतर कहते हैं। आपने फरमाया ये बतरा सलवात मुझ पे न पढ़ो जो आगे न जाती हो। तो लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह
ये अधूरी सलवात क्या होती है और पूरी सलवात क्या होती है। आपने फरमाया अधूरी सलवात ये है कि तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और पूरी सलवात ये है कि तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, क्योंकि इसके जो अल्फाज हैं मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से पढ़े जाते हैं। हम जिस तरह पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद है। तो आपने फरमाया ये मुकम्मल सलवात है कि जिसमें आले मुहम्मद का जिक्र आना चाहिए। तो सलवात में आले मुहम्मद का इजाफा हुजूर के फरमान से हुआ है, और सलवात का ये जुमला जो है वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सलवात पढ़ने के तरीके के हिसाब से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। सलवात का जो मतलब है उसमें जो रहमत का तकाजा है, हम थोड़ी उसकी बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और हम रहमत की दुआ मांगते हैं। अल्लाह रहमत देता, हम भी रहमत देते हैं, ऐसा नहीं हो। हम प्यासे हैं, हम अल्लाह फरमाता है अल्लाह गनीयुन व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है, तुम फकीर हो, तुम तो लेने वाले हो। प्यासा कुएं को देता नहीं है, कुएं से लेता है। अलबत्ता कुएं की सलामती की दुआ मांगता है, वो उसकी सलामती की दुआ मांगता है जिससे उसकी हयात वाबस्ता है, जिससे उसकी जिंदगी है। तो अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है, हम रहमत की दुआ मांगते हैं, वो देता है, हम लेते हैं। वो दरिया है, हम प्यासे हैं, दरिया से लिया जाता है, दरिया को दिया नहीं जाता। रहमत नाजिल करना हमारा काम नहीं है, रहमत के नुज़ूल की दुआएं मांगना जो है वो हमारा काम है। चूंकि रहमत नाजिल करना ये हमारे बस में नहीं है। मोहम्मद और आले मोहम्मद चूंकि इस जमीन पर हमारे सरपरस्त और माँ बाप के तौर पर है, हुजूर ने फरमाया अना व अंत या अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, ए अली मैं और तुम इस उम्मत के माँ बाप हैं, और औलाद की जो भलाई है वो माँ बाप के साए में है, और औलाद की खुशी माँ बाप के साए में है। औलाद को अपने माँ बाप से रहमत मिलती है। हमें रहमत जो अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर और इमाम जमीन पर खुदा की सिफात के मजहर होते हैं। आज हम जो अम्र मुखी साहब कहकर एक काम शुरू करते हैं कि जमात खाने में मौला का अम्र है, ये अम्र खुदा तक पहुंचता है। अल्लाह के अम्र से कायनात चली है, अल्लाह के अम्र से दुनिया चलती है। इस अम्र का मजहर अल्लाह ने पैगंबरों को बनाया है। पैगंबर के बाद ये मजहर अम्र का मजहर इमाम के पास आया है, और इमाम इस हिसाब से उलुल अम्र है। तो गोया हमारी जिंदगी पर अल्लाह का अम्र जिस तरह इमाम के जरिए से आता है, इस तरह अल्लाह जो रहमत नाजिल फरमाता है जमीन वालों पर, वो उसके पैगंबर के जरिए से और उसके इमाम के जरिए से आता है। इसलिए वो रहमत का मरकज है और रहमत का मंबा है। और चूंकि हमें रहमत उनके जरिए से हासिल होती है, हम इस रहमत के मंबा के हमेशा के लिए सलामती की दुआएं मांगते रहते हैं। जिस हरे भरे दरख्त के साए में हम रहते हैं, जिसके नीचे हमने अपना घर बनाया है, जिसके पत्तों के साए में हमें ठंडक मिलती है और जिसके फ्रूट से हमें खुराक मिलती है, हम उस दरख्त की सलामती की दुआ मांगते हैं या नहीं मांगते? हम हर खुशहाली के मौके पर कहते हैं या मौला गज जमात पर तेरा नूरानी छत्र हमेशा कायम रहे। यही है वो दुआ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खुदाया तेरी ये रहमत का जो साया है गज जमात के ऊपर हमेशा बरकरार रहे। इसलिए सलवात को पढ़ने और सलवात के मानी को समझने पे जोर दिया गया है। इस तरह वालिदैन की जिंदगी में वालिदैन की रहमत से बच्चों की जिंदगी आबाद है, तो बच्चे हमेशा वालिदैन का साया सर पे बरकरार रहे, उसके लिए दुआएं मांगते रहते हैं। इसके अलावा पैगंबर और इमाम को भी लोग कहते भाई ये रहमत है, अल्लाह के मजहर है, ऑल पावरफुल है, इनके पास तमाम ताकत है, तो इनको किसी की दुआओं की क्या जरूरत है, क्या हाजत है?
जिंदारों, एक चीज फरामोश नहीं करनी चाहिए कि पैगंबर और इमाम भी दुनियावी तौर पर जो दुनियावी और जिस्मानी जिंदगी के कवानीन हैं उनके पाबंद होते हैं। आप देखिए, जिस्मानी तौर पे वो भी दुनिया में जन्म लेते हैं और दूसरे इंसानों की तरह उनकी भी जाहिरी जिंदगी पूरी होती है। उन पर भी दुनियावी तकालीफ आती है, उनको भी बीमारी लाहक होती है। बल्कि आप देखेंगे जितनी तकालीफ, मुश्किल, परेशानियां अइम्मा को और पैगंबरों को आई, इतनी हमको नहीं आई है। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं डॉक्टर शफीक विरानी साहब, उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है, द स्माइल इज इन द मिडिल एजेस। कुरुन वस्ता में, दरमियानी जो हमारी तारीख है, वो जमाना जब आलमौत की हमारी जो हुक्मरानी थी वो खत्म हुई और उसके बाद लंबा अरसा इस्माइलियों ने पोशीदा तौर पे काम किया। उसको अगर वक्त मिले आप जरूर पढ़ें, आपको पता चलेगा कैसी कैसी मुसीबतें इमामों पे गुजरी हैं और कैसी कैसी मुसीबतें हम जमातों पे गुजरी है कि ऐसे हालात पैदा हुए थे कि तारीख नवीस ये लिख चुके थे कि बस अब ये कौम खत्म हो गई है, इनका एक भी मुरीद, एक भी इंसान बचा नहीं है। लेकिन वो मुरीद कहां कहां बरकरार रहे, कहां कहां बचे हैं, किस तरह, किन मुश्किल हालात में उन्होंने शमे ईमान को रोशन रखा है, ईमान के साथ अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा है, ये इस किताब में मौजूद है। पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते कि ये हमारे माँ बाप थे, ये हमारे बुजुर्गान थे, ये इमाम के मुरीद थे। इमामों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, मुरीदों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। तो पैगंबर और इमाम को भी दुनियावी तौर पर हिफ्ज़ व अमान और सलामती की और दुआओं की जरूरत होती है। नबी साहब भी जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो रात की तारीकी में गए, दिन दहाड़े सबको ऐलान करते हुए, लोगों को बताते हुए नहीं गए। वो तो अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, उनको इस तरीके से जाने की क्या जरूरत थी। ये जिस्मानी जिंदगी का तकाजा है। वो 3 दिन तक एक गार में जाके छुपे रहे, उनको छुपने की क्या जरूरत थी। क्या नबी साहब जंगों में जाते थे तो खाली हाथ जाते थे या तलवार रखते थे अपने साथ, ढाल उठाते थे तलवारों के वार से बचने के वास्ते या नहीं। ये बहुत सादा सी चीज है। तो पैगंबर और इमाम भी दुनियावी तौर पर अल्लाह फरमाता है कि हर जमाने में अल्लाह ने पैगंबरों का एक न एक दुश्मन तो बनाया ही है। और हमारे एक अजीम इस्माइल शायर ये भी कहते हैं कि हर दौर में इमाम के सामने एक फिरौन होता है, हर दौर में इमाम के सामने एक फिरौन होता है। यानी हर जमाने में इमाम को सताने वाला कोई ना कोई एक तो मौजूद होता है। इन तमाम चीजों से प्रोटेक्शन के लिए, चूंकि सलवात में प्रोटेक्शन मौजूद है, अल्लाह की रहमत में प्रोटेक्शन मौजूद है, इन तमाम चीजों के लिए भी पैगंबर और इमाम को मोमिनीन की दुआओं की, सलवात की जरूरत रहती है। इसलिए सलवात पढ़नी चाहिए और सलवात का फैज लेना चाहिए। मेरे इसी अजीज दोस्त ने, डॉक्टर शफीक विरानी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात बताई, चूंकि वो हमारे फातमी दौर के अरबिक लिटरेचर का बड़ा अच्छा मुशाहिदा करते हैं, मुताला करते हैं। और इत्तेफाक से सालगिरह के मौके पर उनके ईद की ईमेल के मुबारकबादी के ईमेल में उसने छोटा सा वाकया लिखा कि काजी नुमान की किताब अल मजालिस वल मुसायरात जो है वो पढ़ रहे थे, उसमें ये बात उन्होंने बयान की है कि काजी नुमान, जिन्होंने तकरीबन 4 इमामों के जमाने में काजी रहे हैं, इमाम की खिदमत की है, इमाम मेहदी, कायम, मंसूर, मुइज़ तक 4 इमाम के जमाने। वो कहते एक दफा इमाम मंसूर अलैहिस्सलाम के साथ में बैठा हुआ था और इमाम के साथ ये बात निकली, चूंकि आप जानते हैं इमाम के हुजूर में उठने बैठने के आदाब के बारे में भी उन्हीं की किताब है कि किस तरह इमाम के हुजूर में कोड ऑफ कंडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इमाम जो है, इमाम के हुजूर में किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो इमाम मंसूर अलैहिस्सलाम से मैं ये बातें कर रहा था कि इमाम के हुजूर में हमें किस तरह बिहेव करना। और मौला ये बता रहे थे कि जिस्मानी तौर पर अगर को जो आदमी इमाम से जितना करीब होता है उसका ईमान और उसका अकीदा और उसकी हैरत जो है और भी बढ़ जाती है और बढ़ जानी चाहिए।
और इमाम ने ये वार्न किया कि किसी को भी इमाम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो इमाम है, ठीक है, हम तो उनके साथ उठते बैठते हैं, और इमाम के साथ इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं हो जाना चाहिए कि बस अब मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है, मैं तो मेरा उठना बैठना उनके साथ है। तो कहा ये बहुत संभालने की और ध्यान रखने की चीज है। फिर कहते इमाम मंसूर फरमाते मैं तुम्हें अपनी एक बात सुनाता हूं जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। कहा मैं जब छोटा था, बच्चा था, एक दफा मैं अपने वालिद साहब इमाम कायम अलैहिस्सलाम के पीछे चल रहा था और मैं मौला का चेहरा मुबारक का दीदार कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था, और मैं आसमानों की तरफ देखता था और कुदरत की जो ये हसीन नजारा है उसको भी इंजॉय कर रहा। तो मैं दिल में कह रहा था कि अल्लाह है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, और मेरे वालिद साहब जमाने के इमाम अल्लाह के नूर के कमान के फरमान की जमीन पर मजहर है, और मैं उसके चेहरे का दीदार कर रहा था और मैं अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मैं अपने इमाम के साथ चल रहा हूं। तो कुछ देर बाद इमाम रुके और मेरी तरफ देखा। मैं बच्चा था, मुझे अपने करीब बुलाया, अपने सीने से लगाया और कहा बेटा मैं खुदा से ये दुआ करता हूं कि तेरे दिल पर वो बातें न डाले जो उसने मेरे दिल पर डाली है। मैं खुदा से ये दुआ करता हूं कि वो तेरे दिल पर वो बातें न डाले जो उसने मेरे दिल पे डाली है। इमाम मंसूर कहते मैं समझ गया कि इमाम अपनी फिक्र की बात करते हैं, इमाम अपने वरीज की बात करते हैं, जमात के लिए कितनी फिक्र उनको है और वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मौला फरमाते मेरी दुआ है कि इतनी फिक्र में तू मुब्तला न हो। कहने का मतलब ये था कि इमाम ज़मान मुरीदों की सारी जिम्मेदारी और सारी फिक्र जो मौला फरमाते हमने अपनी सारी जिंदगी अपने रूहानी बच्चों के वास्ते वक्फ की हुई है। तो जब वो जिंदगी वक्फ की हुई है, हम एक सेकंड के लिए भी सोच सकते हैं कि जमाने के इमाम पर जब मुरीदों पे बुरा हाल गुजरता है, किसी मुल्क से ही पूरी जमात को निकाल दिया जाता है, कोई पूरा मुल्क इस तरह बिगड़ जाता है कि पूरी जमात जो है वो दरबदर हो जाती है, उसकी फिक्र सिर्फ एक इमाम करते हैं, तो वो कितनी बड़ी फिक्र की बात होगी। दुनिया बहाने जिस्मानी तौर पर किसी को भी इसमें सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी को भी इसमें रहमत और दुआओं की जरूरत होती है। तो ये मुरीदों की सलवात ही है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की ये मुतवातिर रहमत जो है वो बरसाती रहती है। इन तमाम मानी में पीर नासिर खुसरो ने एक बहुत ही खूबसूरत सी मीनिंग का इजाफा किया है, जिससे सलवात की जो मीनिंग है वो और फैल जाती है और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। उनका फरमाना है कि सलात का एक मतलब पीछे चलना भी होता है। कहते हैं घोड़ा, जब आप बहुत से घोड़े दौड़ते हुए देखते हैं, जो घोड़ा सबसे आगे होता है उसको साबिक कहते हैं, जो आगे है, और दूसरा घोड़ा जो बिल्कुल उसके पीछे पीछे लगा हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है, उसके पीछे जा रहा होता है, उसको मुसल्ली कहते हैं। मुसल्ली कुरान में एक आयत है, जब क़यामत के दिन लोगों से उनके अमाल के बारे में पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा आज ये हाल क्यों हुआ, जहन्नम में क्यों जल रहे हो, तो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम मुसल्ली नहीं थे। इसका एक तर्जुमा ये करते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हमें जहन्नम में डाला गया। इसका तर्जुमा ये भी कर लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमने हादी ज़मान की पैरवी नहीं की, हम रसूलुल्लाह के पीछे नहीं चले, हमने अल्लाह के फरमान के पीछे हम नहीं चले, इसलिए आज हमारा ये हाल है कि हम पीछे चलने वालों में से नहीं थे। तो वो फरमाते हैं जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के पीछे चला, तो गोया ए अल्लाह तेरी रहमत मोहम्मद और आले मोहम्मद पे रहे और उसकी वो रहमत हम पर आती रहे, और उस रहमत के तुफैल ए अल्लाह हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की पैरवी करते रहे, उनकी ताबेदारी उनकी फरमान बरदारी में रहे, और उनकी पैरवी में हम जानते हैं दोनों जहान का सुकून है,
اور دونوں جہان کی آبادی ہے. اور اس آیت کے آخر میں آپ دیکھیں وسلم و تسلیمہ میں یہی کہا گیا ہے کہ اسے اس طرح تسلیم کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. تو کہتے اس میں پیروی کی میننگ اور پیروی کے معنی بھی ہے. آل محمد کا جو اس میں ذکر آیا ہے، یہ آل محمد سے مراد کون ہے؟ تمام مسلمان اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ آل محمد رسول اللہ کی اہل بیت، آپ کی فیملی، بی بی فاطمہ، علی، حسن، حسین، یہ آل محمد ان کی اولاد سے ہونے والے. اس کے بعد وہ اور لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک بات تو متفق ہے کہ آل محمد میں رسول کے جو گھرانے ہیں وہ آل محمد اور رسول کے اہل بیت ہے. اور جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو آل محمد پہ پڑھتے ہیں. اور امام نے اس کا خلاصہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ نے جس طرح قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو آپ دیکھیں یہ آل محمد کی جو تعریف ہے اور تشریح ہے قرآن شریف کی اس آیت میں ہمیں دے دی گئی ہے. امام نے طریقہ بورڈ پاکستان کو ایک دفعہ ایک تعلیقہ مبارک بھیجا. جب یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا صلوات کے اندر ہم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور کا نام بھی لے سکتے ہیں یا نہیں، تو مولانا نے فرمایا کہ صلوات میں محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور کا نام شامل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے پیغمبر اور امام کا نام لیا جائے تو صلوات پڑھنا کبھی نہیں بھولنا، صلوات ان پہ ضرور پڑھنا. اور امام نے اپنے پچھلے وزٹ میں پاکستان کے دورے پہ یہ ہدایات بھی دی تھی کہ آپ جماعت سے کہیں کہ جب وہ صلوات پڑھے تو شیعہ طریقے سے صلوات پڑھیں، اور شیعہ طریقے میں محمد اور آل محمد پر ہی صلوات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں کیا جاتا. بہت بڑے سنی عالم ہے شافعی، جو 4 بڑے اسکول ہے سنیوں کے، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی. یہ امام شافعی جو ہے وہ مولا علی کی ذات سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور اسی کا یہ شعر ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ وفی القرآن انزلہ کفاکم من عظم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له. کہ اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرض کر دی ہوئی ہے. تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اپنی صلات میں، نماز میں تم پر صلوات نہ پڑھے ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے. کہتے اے آل محمد، اس سے زیادہ تمہاری بڑائی کا اور کیا تذکرہ ہو سکتا ہے. صلوات پڑھنے کا جو ثواب ہے یہ کس طریقے سے ہم تک پہنچتا ہے؟ صلوات میں ہم ایک چیز جو طلب کرتے ہیں وہ رحمت ہے، رحمت ہے. اور قرآن شریف کے اللہ کے تمام ناموں میں وہ نام جو سب پہ غالب ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ کی وہ صفت جو باقی تمام صفات پر غالب ہے وہ رحمت ہے. وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہے. میری رحمت نے میرے غضب کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب سے زیادہ ہے. وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ لوگ جو کچھ بھی مال و دولت جمع کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے. تو اللہ سے رحمت ہمیشہ طلب کرتے رہنا چاہیے. کبھی کوئی ایسا لگے کہ ناانصافی ہو رہی ہمارے ساتھ تو انصاف مانگنے کی بجائے رحمت مانگے. اس کے انصاف میں بھی رحمت ہے، تو آپ سوچیں جب اس کی رحمت ہوگی تو کیا نہیں ہوگی. اس کا انصاف یہ ہے کوئی ایک برائی کرتا ہے اللہ اس کو اسی برائی کا اتنا بدلہ دیتا ہے. کوئی ایک اچھائی کرتا ہے تو انصاف تو یہ ہے کہ اس کو اتنا ہی بدلہ ملنا چاہیے. کہ نہیں، اچھائی کرتا ہے تو 10 گنا دیتا ہوں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو اچھا کرتا ہے میں اس کو 10 گنا دیتا ہوں، جو برا کرتا ہے اس کو اتنا دیتا ہوں. آپ دیکھیں انصاف میں بھی کتنی رحمت ہے. تو جب اس کی رحمت طلب کی جائے، وہ فرماتا ہے میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. لمغفرۃ من اللہ ورحمت. 2 چیزیں، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ،
खैरुम मिम्मा यजमाउन, अल्लाह की तरफ से मगफिरत, जो हम गुनाहों की माफी मांगते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, ये गुनाहों की माफी, ये और अल्लाह की रहमत। अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ भी तुम जमा करते हो दुनिया में उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपना ध्यान मगफिरत में और रहमत में दो, किसी और चीज में नहीं। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि जो रूहानी फायदे हमारी रूह को पहुंचते हैं उसका भी हमें इसी तरह इल्म होना चाहिए जैसा कि जाहिर में होता है। जाहिरी चीजों का हमें बज़ाहिर इल्म हो जाता है, बातिनी चीजों का इल्म उस तरह परसेप्टिबल नहीं है जिस तरह, भाई सर में दर्द है, मैंने 2 टैबलेट खा ली तो मेरा सर दर्द खत्म हो गया, तो मुझे पता चला मेरी शुगर बढ़ गई है, मैंने टैबलेट खा ली, मुझे पता चला कि मेरा शुगर बैठ गया, या मेरा प्रेशर हाई हो गई, मैंने टैबलेट खा ली, मुझे पता चल रहा है कि मेरा प्रेशर लेवल पे आ रहा है। तो ये तो जाहिरी चीजें हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने सलवात पढ़ी तो मुझे पता चला मुझे इसका ये फायदा हो गया, क्योंकि वो बातिनी है। हम उसको जाहिरी चीजों से मेजर करने की कोशिश नहीं करें कि इसका कितना सवाब मिलता है, सवाब की डिग्री क्या है, सवाब से क्या होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह अच्छी ग़िज़ा खाने से और अच्छी दवाइयां वक्त पर लेने से हमारा जिस्म बेहतर रहता है, हम तंदुरुस्ती महसूस करते हैं, इसी तरह जिक्रुल्लाह के जरिए से, अल्लाह की याद और सलवात से हमारी रूह तवाना होती है, हमारी रूह में मजबूती आती है। और उसी की तरफ इमामों ने अपने फरामीन में भी इशारा फरमाया है। और इस सलवात के जरिए से कौन जानता है, आज जो हमें दुनिया की इतनी मुश्किल हालात में भी हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की राह पे मजबूती से चल रहे हैं, ये हमारे इन्हीं सलवात की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह तो तेरी रहमत हम पे रहे कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की राह पे हमेशा चलते रहे। आज दुनिया भर में जो हम चलते रहे हैं आले मोहम्मद की राह पे, कौन जानता है, किसे पता कि ये उन सलवात के नतीजे में हो जो दुनिया भर के मुरीद पढ़ते रहते हैं। सलवात में अल्लाह का जिक्र है, इस तरह बहुत सारी तस्बीहात हैं, सलवात भी अल्लाह का जिक्र है। हम एक दुआ मांगते हैं और अल्लाह फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून है। और जब अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून है, इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती। और आप बताइए सुकून से बढ़ के अच्छी चीज क्या है दुनिया में? सारा दौड़ धूप जो दुनिया में हम कर रहे हैं उसी सुकून के वास्ते कर रहे हैं, और जितना तरह दौड़ धूप करते इतना सुकून खराब होता है हमारा, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि सुकून के लिए दौड़ धूप किया नहीं जाता, खामोशी से बैठा जाता है। ठीक है, हम समझते जितना ज्यादा जमा करो इतना सुकून मिलेगा, हमें ये नहीं मालूम कि जितना आप देंगे इतना सुकून मिलेगा। हम समझते जितना लोड अपने ऊपर उठाओ इतना सुकून मिलेगा, हमें ये नहीं मालूम जितना अपने आप को हल्का करोगे, उतारोगे बोझ, इतना हमें सुकून मिलेगा। तो सुकून का ताल्लुक बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पे है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मौला ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह मोहम्मद अली का नाम लो, और सलवात भी अल्लाह के जिक्र में से है। अल्लाह फरमाता है जिक्र में सुकून है। और नुज़ुल सलवात में वसल्लु अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम, इनको आप सलवात दे, इनके लिए आप सलवात पढ़ें, दुआएं दे, आपकी दुआ में इनके लिए सुकून है, और सुकून में सब कुछ है। नुज़ुल सलवात, सलवात का जो फायदा है, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाली चीज है, गुमराही के अंधेरे से हमें रोशनी की तरफ लाती है, परेशानियों के अंधेरे से हमें रोशनी की तरफ लाती है। हजारों किस्म के अंधेरे इस कायनात के अंदर जो मौजूद है, जिससे अल्लाह ने पनाह मांगने के लिए कहा है, उन सब से सलवात रोशनी की दुनिया की तरफ, बातिनी रोशनी की दुनिया की तरफ हमको ले आती है। ये फायदा जो है इस सलवात पर है, और सलवात के जरिए हम सिरात मुस्तकीम पर कायम रहते हैं। जो अल्लाह ने फरमाया इन लोगों पर सलवात है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, जिन पर ये सलवात नाजिल होती है और जिनको ये दुआएं मिलती हैं, वो सिरात मुस्तकीम पर कायम रहते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने
4 फरवरी 1894 को जब मौलाना चांदरात पंजे भाई पंजे बहनों की बुनियाद रखी थी, उस वक्त मौलाना जमात को, चांदरात के पंजे भाइयों को जो गाइडेंस दी थी, उसमें इमाम ने सलवात पढ़ने की भी हिदायत दी थी। इमाम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह आप सब एक दिल होकर जमात खाने में आकर बंदगी करेंगे और उसमें सलवात ज्यादा पढ़ेंगे, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इंशाअल्लाह आपकी कुव्वत रोज बरोज बढ़ेगी, आपके दुश्मन दफा होंगे, आपके गुनाह माफ होंगे, आप बहश में जाएंगे और दीदार नसीब होगा इंशाअल्लाह। मौला फरमाता आपकी कुव्वत रोज बरोज बढ़ेगी। कुव्वत भी जाहिरी होती है, बातिनी होती है, और ज्यादा अहम कुव्वत जो है वो बातिनी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जिसका बातिन स्ट्रांग है उसको कुछ नहीं होता। असल कुव्वत वो है। दुश्मन भी दो किस्म के होते हैं, जाहिरी दुश्मन है, बातिनी दुश्मन है। बातिनी दुश्मन, जाहिरी दुश्मन हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर बातिनी दुश्मन हमारी अकीदे और रूह को नुकसान पहुंचाते हैं। उससे बचना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। अब देखें, हम मरहूम के लिए तस्बीह पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, सलवात पढ़कर इसके सवाब मरहूम को देते हैं। मौला ने फरमाया इससे आपके गुनाह माफ होंगे, आप बहश्त में जाएंगे और आपको दीदार नसीब होगा इंशाअल्लाह। सलवात को हासिल करने की जो शर्तें हैं वो भी अल्लाह ने कुरान में बताया है कि सब्र होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया सब्र करने वालों पे सलवात नाजिल होती है। मुश्किलात दुनिया में सब पे आती है, मगर उसके लिए वावेला न मचाते हुए, शिकायत न करते हुए, हिकमत से उन मुसीबतों में अल्लाह ने हमारे वास्ते जो लेसन रखा है उसको हासिल करने की कोशिश करें, तो अल्लाह ऐसे सब्र करने वालों पर रहमत नाजिल फरमाता है। बहुत ज्यादा जिक्र और तस्बीह का पढ़ना जरूरी है अल्लाह की सलवात हासिल करने के लिए। ये जो आयत मैंने बीच में आपको बताई कि अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम लोगों पे सलवात भेजते हैं ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाए, इसकी अगली वाली आयत ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन, ए ईमान वालो अल्लाह का खूब जिक्र करो। लोग पूछते हैं कितनी दफा करे, 11 दफा करे, 33 दफा करे। अरे अल्लाह के जिक्र में नाप तोल की क्या बात होती है? ये तो कांग्रेगेशनल प्रेयर के लिए है, जहां पूरी जमात साथ में होती है तो नाप तोल के करना पड़ता है, क्योंकि जमात होती है। अपनी इबादत में गिनती का है कि मेजरमेंट का है, का नाप तोल का है। अल्लाह फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन, अल्लाह को बहुत याद करो, खूब याद करो। वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, सुबह और शाम उसकी तस्बीह पढ़ो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम पर सलवात भेजेंगे। अगर जिक्र बहुत ज्यादा सुबह शाम तस्बीह है तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की रहमत तुम पर उतरेगी ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाए। तो इबादत बंदगी के नतीजे में बंदा जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाता है, ये अल्लाह की सलवात की वजह से होता है, ये अल्लाह की रहमत की वजह से होता है, जिससे मोमिन रोशनी की तरफ जाता है। और तीसरी बात जो इसके वास्ते जरूरी है वो दसौन में पूरा रहना और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। दान और सखावत, दसौन, इनमें पूरा रहना, क्योंकि जो लोग अपना माल खर्च करते हैं, दसौन अदा करते हैं, अल्लाह ने फरमाया ए रसूल उनको सलवात दो, आपकी सलवात में इनके लिए सुकून है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है यानी सलवात पढ़ता है, मलाइका उस पर उस वक्त तक सलवात पढ़ते रहते हैं जब तक वो मुझ पर सलवात पढ़ता रहता है। तो जब तक बंदा सलवात में है, फरिश्तों की सलवात मोमिन पर उतरती है। आपने फरमाया जो मुझ पर एक बार सलवात भेजता है, अल्लाह उस पर 10 बार सलवात भेजता है। देखा वही बात, जो एक नेकी करता है अल्लाह 10 गुना देता है, जो एक सलवात मुझ पे पढ़ता है अल्लाह 10 सलवात यानी 10 गुना उसको रहमत का फैज जो है अल्लाह वहां देता है। कयामत की रोज मेरे करीब रहने का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो होगा जो मुझ पे सबसे ज्यादा सलवात पढ़ा करता था। और आपने फरमाया बखील वो है
कंजूस इंसान वो है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया गया मगर उसने सलवात नहीं पढ़ी उस मुझ पे। का वो बड़ा कंजूस है कि मेरा नाम उसके सामने लिया गया मगर उसने मेरा नाम के साथ उस सलवात की दुआ न पढ़ी। एक सहाबी ने नबी साहब से अर्ज करते हैं कि मैं रात की जब इबादत में, उस वक्त लोग बहुत रात को जगा करते थे, अभी भी बहुत से इंडिविजुअल्स की आदत है देर तक या बहुत जल्दी उठकर भी इबादत करते हैं, कि रात की इबादत में मैं 1/3 हिस्सा 1/3 अपनी रात का जो है उसमें मैं आप पे दुरूद पढ़ता हूं, उसमें मैं आप पे सलवात भेजता हूं। आपने फरमाया 1/3 की बजाय आधी रात कर लो, बढ़ा दो इसको थोड़ा। कहा मैं आधा कर लूं, आधी रात कर दो, आपका कहना है? आपने फरमाया 2/3 कर डालो, ऐसा करो, 2/3 कर डालो, यानी अगर तुम कर सकते हो तो बढ़ाओ और बढ़ाओ इसके अंदर। कहा मैंने कि पूरी इबादत में सलवात ही पढ़ता रहूं आपके लिए? आपने फरमाया फिर तो अल्लाह तेरे सारे गुनाह बख्श देगा। देखिए वही फरमान मौला का है, आप सलवात ज्यादा पढ़ेंगे आपके गुनाह माफ होंगे। हुजूर अकरम ने फरमाया तब तो तेरे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। एक और सहाबी ने अर्ज किया कि मैं बहुत ज्यादा आप पे सलवात पढ़ता हूं, मैं कितना वक्त गुजारूं आपके सलवात में? मैं जो है वो 1/4 गुजारता हूं। आपने फरमाया ठीक है, तो जितना कर सकता है ठीक है, लेकिन बढ़ा दे तो अच्छा है। उसने कहा मैं 1/4 तो करता हूं, लेकिन अगर मैं आधा कर लूं तो आपने फरमाया जितना तू चाहे मगर बढ़ा दे तो अच्छा है। कहा मैं 2/3 कर डालो, आपने फरमाया तेरी मर्जी है तू जितना कर सक, लेकिन बढ़ा दे तो अच्छा है। उसने कहा फिर तो मैं सारी रात जो है वो आपके ऊपर सलवात ही भेजता रहूं। आपने फरमाया अल्लाह तुझे हर हम व गम से, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, जो हम पढ़ते हैं नादे अली में, अल्लाह तुझे तमाम हम व गम से बचा लेगा और तेरे तमाम गुनाह माफ कर देगा। तो ये वो फैज, ये वो फायदा, ये वो बरकत इस एक जुमले के अंदर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मगर ये इतना मुबारक जुमला है, ये वो तस्बीह है जो रसूल खुदा के घर से, जो अल्लाह के फरमान के मुताबिक खुदा के रसूल ने हमें दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन की ये बरकत और ये खूबी है कि खुदा के रसूल और जमाने के इमाम के मुख मुबारक से निकले हुए ये बरकत वाले अल्फाज और दुआएं हमारे पास मौजूद है, जिससे हम दुनियावी और रूहानी फैज और दुनियावी और रूहानी बरकत हासिल करते हैं। अब इसके बाद ये कहने की जरूरत नहीं है कि आज से हमारी सलवात की तस्बीह में, हमारी जाती तस्बीह में सलवात का इजाफा होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बरकत। और इमाम ने भी फरमाया बंदगी करो उसमें सलवात ज्यादा पढ़ो, तो इससे बरकत भी हासिल होंगी और आले मोहम्मद के पीछे चलने की तौफीक भी हासिल होगी। और जो आले मोहम्मद के पीछे चलता है उससे दुनिया में किसी का खौफ नहीं रहता। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम हमारे तमाम इबादत बंदगी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला गल जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत और आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।